अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study narration and passive voice for class metric. I hope that you have your copy, notebook, pencil and other stationeries. If you do not have, collect it quickly. Now I hope you would be ready to study. But before starting our lecture or class, we will recite this dua to get all blessing. So you are going to repeat these words with me. As-salatu was-salam alayka ya Rasulallah व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। So dear students, now we are going to see our SLO. You know that always we discuss SLOs before starting class. So the SLO is in front of you. SLO means student learning outcome. Means those students are going to attend this class, they will get these things. Okay, these things means narration and passive voice, means rules. Today we are going to focus on rules of narration and passive voice. So those students are attending this class, they will be able to get that. As you can see on your screen, it's written students will be able to understand rules of narration and passive voice, inshallah azza wa jal. So now we are going to move towards our first topic. Okay, you know that we have two topics today, so now we are going to move towards our first topic, and it is narration. Okay, so mostly students get confused in narration because they do not know the rules and their usage. Okay, so today we are going to focus usage and rules of that, and it will make narration easy for us. Okay, so if I ask you about narration, what comes in your mind when you hear this word narration? What is this? Yes, conversions, formula, tenses. Okay, and mostly okay, students are tangled and these things puzzle us. Okay, so today we are going to see these all rules clearly. Okay, so narration, if somebody asks you what is narration, so you can answer it easily. Narration is extracted from a word narrate, and narrate means in Urdu we say बयान करना, किसी भी चीज़ को, वाक़ये को या किसी के पैगाम को बयान करना, it is called narration. Okay, if somebody asks you, you can tell it easily now. Narration means bayan. Okay, so now let's see usage of narration. So narration is used to narrate. Say, as I told you, it is used to narrate and to convey someone's message.
Okay, so there are two things. Number one, it is used to narrate. Number two, it is used to convey someone's message. Okay, narrate, where do we narrate? For example, if any documentary is going on and people narrate that. Okay, and message, if somebody says anything and we tell to others. For example, we tell फरमाने अमीर अहले सुन्नत, फरमाने निगरान शूरा. Okay, so when we sometimes we also tell hadith. Okay, so what we do, we narrate that. Okay, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर अहले सुन्नत ने ये फरमाया. तो ये क्या करते हैं, हम बयान करते हैं, उनकी बात को बताते हैं कि भाई फ़लाँ ने ये चीज़ बोली है, बताई है. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ नरेशन वी कन्वे अदर्स मैसेज. सो now it's time to see difference between direct and indirect. Direct and indirect narration. Narration has two kinds, direct and indirect. Okay, so what's the difference between them? तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर जो फ़र्क है वो क्या फ़र्क है? Let's see this example. Now you can see on your screen there two sentences are written. First one is direct, second one is indirect. Direct sentence, he says I am brave. Okay, and in indirect it's written he says that he is brave. Now you can see some differences. Okay, now you can see there isn't any comma. Achha, comma we can see only in writing, in reading. Okay, in speaking we cannot see that. Okay, so that we can listen and say. Okay, and there is one more change. He is brave. देखिए, हम ये कहते हैं उर्दू में भी, वो कहता है मैं बहादुर हूँ. अब उसने ये बात कही, कहीं पर कह रहा था भाई मैं बहादुर हूँ. अब मैं अगर किसी को बताऊँगा तो मैं दो तरीक़ों से बता सकता हूँ उसकी बात. ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ वो कहता है मैं बहादुर हूँ, और मैं दूसरा तरीका क्या, इनडायरेक्ट क्या है कि मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, यानी कि आई की जगह ही ले आऊँगा, यानी कि मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो उसकी बात है तो मैं वो कहूँगा. ठीक है, वो कहता है कि वो बहादुर है. सही है, तो दोनों तरीके हैं किसी का मैसेज कन्वे करने के, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है. अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो सीखते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी इसी तरह के आते हैं कि हमें डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं और हमने वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने होते हैं. सही, तो आज हम यही कुछ सीखने वाले हैं. सही, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स देखने होंगे. सही है, तो नरेशन के रूल्स हम देख लेते हैं. हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. देखिए, अब हमने ये सीखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सही, सो देयर आर सम रूल्स इन फ्रंट ऑफ यू. आपको कुछ रूल्स नज़र आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर. तो देयर आर 4 रूल्स. सही, तो क्या करना होगा, जैसे कि आपने लास्ट वाले एग्जाम्पल में कुछ चेंजेस देखे थे डायरेक्ट से आते हुए, जब हम इनडायरेक्ट में आ रहे थे तो कुछ रूल्स थे जहाँ पे आपको दिखा था कि कॉमास वगैरह हट गए हुए थे, दैट लगा हुआ था, आई की जगह ही आ गया था. तो ये वो रूल्स अब आपके सामने मौजूद हैं. अब हम इनको सीखने जा रहे हैं. तो रूल नंबर 1, दैट रिप्लेसेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव. सही है भाई, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कॉमा हटाकर
दैट लिख देंगे वहाँ पर, और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना है, ये तो हम बआसानी कर ही सकते हैं, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस कॉमा हटाया, दैट लगाया और इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटा दिया, सही है। तो रूल नंबर 1 फॉलो हो गया, सही। अच्छा भाई, अभी हम इसको और क्लियर भी करेंगे। प्रोनाउन चेंजेस, प्रोनाउन चेंजेस में हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास आगे चार्ट आएगा हमारे पास इसका, तो मैं दिखाऊंगा प्रोनाउन कौन सा वाला किस में चेंज होगा। जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा आई की जगह ही आ गया था, ये कैसे आया था ये हम इसी वाले रूल में सीखने वाले हैं, ठीक है। नंबर 3 है हमारे पास टेंस चेंजेस, ठीक है। इसमें टेंस में, क्योंकि पिछले वाले सेंटेंस में हमने टेंस चेंज नहीं करा था, टेंस चेंज एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही चेंज होता है, वो कंडीशन क्या होती है ये भी हम आपको अभी बताएंगे, सही। एंड अदर चेंजेस, यानी कि कुछ छोटे मोटे और चेंजेस हम इसमें करते हैं, ठीक है। जैसे कि एडवर्ब चेंज कर दिया, या प्लेस है, टाइम है, हम क्योंकि देखें जब हम कहते हैं वो कह रहा था यहाँ आओ, तो यहाँ के बजाय बाद में वो वहाँ हो जाता है, यानी कि हेयर की जगह देयर हो जाता है। इस तरह की जो छोटे चेंजेस हैं वो मैंने अदर चेंजेस में आपके लिए रखे हैं, और उसकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। सो नाउ लेट्स सी दिस रूल्स वन बाय वन, इनको इनके एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं एक एक करके, सही। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 पे जाने से पहले आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये चीज़ हमें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में फ़र्क क्या है, सही। वरना हमें कन्वर्ट करने में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, सही। तो आप देख सकते हैं कि दे सेड वी आर कमिंग, तो इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, यानी कि एक तो ये है दे सेड जो कि मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, सही, और दूसरा है वी आर कमिंग जो पर्पल कलर से लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, सही। तो वी आर कमिंग जो हिस्सा है इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इसकी पहचान क्या है कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, सही है। जबकि रिपोर्टिंग स्पीच दे सेड ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होते हैं, यानी कि वो चीज़ जो जिसमें होता है कि कौन फरमा रहा है, कौन कह रहा है, वो वाला हिस्सा जो है रिपोर्टिंग है, सही है। तो ये चीज़ हमें याद रखिए, क्योंकि इन टर्म्स को हम आगे फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि जब हम बोलें रिपोर्टिंग तो आप सोच रहे हैं रिपोर्टिंग कौन सा वाला होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग कौन सा वाला हिस्सा है और रिपोर्टेड कौन सा वाला हिस्सा है, सही। वरना फिर आप जब इस वीडियो में आगे होंगे तो फिर आपको वापस पीछे जाके दोबारा से देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग कौन सा है, रिपोर्टेड कौन सा है, सही। ऐसा कर भी सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो वो वीडियो को पीछे जाकर देख सकता है। ओके, सो नाउ रूल नंबर 1 इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हम करते क्या हैं, रिमूव कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज़ दैट, सही। तो मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉमा हटाते हैं, उसकी जगह दैट लगाते हैं। देखें ये आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम आ रहे हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, दे से वी स्पीक ट्रूथ, ओके, दे से वी स्पीक ट्रूथ। इनडायरेक्ट में क्या कहते हैं, दे से दैट। देखिए यही हुआ, कॉमा हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, सही। अच्छा, वी की जगह दे लगाया है, लेकिन ये सेकेंड रूल वाला हमारा रूल है जो कि प्रोनाउन चेंजेस का, ये हम आपको अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम आपको दिखा देंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन अभी फोकस किस चीज़ पे रखें, रूल नंबर 1 पे रखें कि क्या करा, कॉमा हटा के हमने दैट लगाया और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, यानी कि पहला काम हो गया हमारा, रूल नंबर 1 हमने फॉलो कर दिया, सही। तो इन रूल्स को आपने याद रखना है, इन चारों रूल्स को, ख़ास तौर पे जो हमारे रूल नंबर 2 और 3 हैं, इनमें हमें चीज़ें जो होती हैं ये याद करते हैं और इनको प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको हमेशा ये
याद रहेंगी, वरना आपके कॉन्सेप्ट हमेशा हिले हुए रहेंगे। सही, तो लेट्स मूव टू आवर रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 हमारे पास आ चुका है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन को चेंज करना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होंगे 3 किस्म के पर्सन्स होंगे, यानी कि 3 किस्म के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सही, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा। ऑल प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, वैसे यहाँ पर रिपोर्टेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच होना चाहिए। सही है, अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करते हैं और किसके मुताबिक करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से करते हैं। ठीक है, सही, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी नज़र आ रही है। शी सेज टू मी आई रिसाइट द होली कुरान एवरी डे। शी सेज टू मी दैट शी रिसाइट्स। अब देखिए आई की जगह शी आया, कैसे आया, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, जब मैंने आपको ऊपर गलती बताई जो प्रिंटिंग की है, रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है, ये रिपोर्टेड नहीं होना चाहिए, ये रिपोर्टिंग होना चाहिए। आप इसको अपनी कॉपी में सही करेंगे। सही, अच्छा भाई, तो क्या होगा, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या था, शी था, तो वो शी आई की जगह आ गया। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई वी, और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही शी दे। सही है, तो अभी हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, और वो किससे रिप्लेस होगा, आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे करा, आई को हटाया और उसकी जगह पे हमने शी को लगा दिया। सही है, ये चीज़ अब आपने याद कर लेनी है ऐसे ही, और ये कैसे और अच्छी होगी, प्रैक्टिस से ही होगी। अच्छा भाई, अब सेकंड पर्सन में हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन में हम ऑल सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है यू की। सही है, ये इनमें से कोई सा भी होगा तो क्या होगा, आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हुआ था रिपोर्टिंग स्पीच की, और ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है शी सेड टू मी। अच्छा, अब देखें ये रिपोर्टिंग स्पीच है, शी सेड टू मी, मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। सही, सेंटेंस क्या है इसके आगे, यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम योर सेल्फ। सही, तो अब हम जब इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1 जो था हमारा, कॉमा हटाया, दैट लगाया, और आई की जगह क्या आना चाहिए, आई कैसे आया, यू को हटाया, आई लगाया, कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया हमने रिपोर्टिंग स्पीच का यहाँ पर। सही है, जो कि हमारा ये रूल भी है। सही, अब थर्ड पर्सन में हम देखते हैं क्या करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या करना है हमने, थर्ड पर्सन में कुछ भी नहीं करना, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होगा। सही है, तो थर्ड पर्सन आपने चेंज नहीं करना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जहां आपको थर्ड पर्सन नज़र आए आपने उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देना है। सही, ही सेड शी इज़ बिजी विद हर टॉय। सही, अच्छा भाई, तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ही सेड, कॉमा हटाया, दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमास हट गए, और शी की जगह शी ही रहा। क्यों, चेंज ही नहीं करते थर्ड पर्सन। ठीक है, वॉज बिजी विद हर टॉयज, देखिए हर भी चेंज नहीं हुआ। सही, अच्छा देखिए, अब ये आपको हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको गेट कर लिया होगा, और कुछ हो सकता है इस चीज़ में हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम कैसे याद रखेंगे, किस में चेंज होता है। तो देखें, एक वर्ड आप याद रख लें, एक वर्ड क्या है, सन, SON, सन, सन जिसको हम उर्दू में बेटा कहते हैं। सही है, तो ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको ये वाला रूल ऐसे ही याद हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज वाला। क्या, SON, S यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, O यानी अब क्या है, सेकंड पर्सन किस में चेंज, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। N मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी कि फर्स्ट में S मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास,
सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये वर्ड आप याद रख लें सन, जब भी आप ये रूल नंबर 2 फॉलो करने जाएं, सही है, पहला आपने फॉलो कर लिया, अब आप सेकंड पे आते हैं तो आप ये वर्ड याद रख लें सन, SON, और फिर आप इसको फॉलो करते हुए प्रोनाउन को चेंज कर दें। सही, तो प्रोनाउन में आपको और दिखा देता हूँ, एक चार्ट हमारे पास आपको सामने नज़र आ रहा होगा, देखें हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं होते लेकिन ये भी चेंज होते हैं, सही है। अच्छा, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ये उसी रूल के हिसाब से ही फॉलो होंगे, चेंज होंगे, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, यानी कि SON के हिसाब से ही ये चेंज होंगे, सिवाय लास्ट वाला जो कि है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मैं आपको अदर चेंजेस में बताऊंगा। ओके भाई, सो नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, टेंस चेंजेस। तो टेंस चेंजेस कैसे करते हैं भाई, ठीक है। ये टेंस चेंजेस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे प्रेजेंट टेंसेस, यानी कि जो प्रेजेंट के चारों टेंसेस हैं ये किस हिसाब से चेंज होते हैं। तो भाई नाउ वी आर गोइंग टू सी दैम। ओके भाई, प्रेजेंट सिंपल गोज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस गोज इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट गोज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव गोज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सही है भाई, तो इनको इसी में चेंज करेंगे। अब इसको अगर आपने याद करना हो तो आसान सा तरीका है, बस ये याद कर लें, प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा, यानी कि लेकिन क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल होगा, यानी कि सिंपल वाला सिंपल में रहेगा, कंटिन्यूस वाला कंटिन्यूस में रहेगा, परफेक्ट वाला परफेक्ट में रहेगा, लेकिन पास्ट से वो प्रेजेंट से वो पास्ट में चला जाएगा। सही, तो इसको आसानी से याद कर लेंगे, बस क्या टेंस चेंजेस में क्या है, प्रेजेंट वाला पास्ट में चला जाएगा। अब पास्ट वालों का क्या करेंगे। अच्छा भाई, पास्ट वालों का हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम अभी देखते हैं। सही, अच्छा भाई, पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, सही, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सही, यानी कि ये क्या होगा, पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और आज अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हों तो इनके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। सही, अच्छा, अगर हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आपने क्या करना होगा, उसमें सिर्फ आपने विल की जगह वुड लाना है, शेल की जगह शुड लाना है, कैन की जगह कुड लाना है, मे की जगह माइट ले आना है। सही, तो ये आप बआसानी कर लेंगे। सही है, तो इनको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा भाई, अब अदर चेंजेस देख लेते हैं। देखें, मैंने कहा था कुछ छोटे छोटे चेंजेस होंगे जिनको मैंने अदर चेंजेस का नाम दिया है, उनमें क्या क्या चेंज हो जाएगा हमारे पास, जैसे नाउ देन में चला जाएगा। देखें, ये वहाँ पे लगे हुए हो सकते हैं जहाँ आप सेंटेंस आपको गिवन होगा, आप कन्वर्ट करने जा रहे होंगे, तो जहाँ नाउ होगा आप देन लगा देंगे, अगो होगा बिफोर लगा देंगे, टुडे की जगह दैट डे। सही, इसी तरीके से आप लगाएंगे। देखिए, मैंने कहा था मैं आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, वो आपका है आपके सामने, दिस दैट में चला जाएगा, दीज दोज में चला जाएगा। सही है, ये भी आपके सामने आ गया। इसी तरीके से आपने ये सारे के सारे फॉलो करने हैं, यानी कि आपने इनको याद कर लेना है कि भाई येस्टरडे होगा तो मैं प्रीवियस डे लिखूंगा, नेक्स्ट मंथ जहाँ लिखा होगा तो मैं फॉलोइंग मंथ लिख दूंगा। सही, तो ये आपके अदर चेंजेस हैं, चूँकि छोटे छोटे चेंजेस हैं, यानी कि टाइम और प्लेस के हिसाब से ये चेंज होंगे। जैसे हम लोग उर्दू में भी करते हैं, यहाँ बोल रहे हैं तो फिर जब मैं उसका मैसेज कन्वे करूँगा तो यहाँ की बजाय वो वहाँ हो जाएगा। सही, तो ये हमारे पास चारों रूल्स हमारे आ चुके हैं। सही, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ चुका है। ठीक है, नरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैसिव वॉइस। सही, तो नरेशन के हमारे पास हैं 4 रूल्स और पैसिव वॉइस, ठीक है, हमारे पास के रूल्स भी हम लोग सीखेंगे, उसका यूजेज भी हम सीखेंगे। सही,
दोनों ही एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस क्या है भाई? देखिए पैसिव वॉइस मीन्स, पैसिव का जो मीनिंग है वर्ड पैसिव, इसका मतलब होता है लेज़ी। सही है। जैसे एक्टिव होता है बंदा, ठीक है, तो जो बंदा काम नहीं करता हम उसको बोलते हैं वो पैसिव है। एक बंदा काम कर रहा है तो वो एक्टिव कहलाएगा, और जो मतलब सुस्त है हम उसको पैसिव कहेंगे। सही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम करता हुआ नज़र आता है तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है, और जहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, इसीलिए हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। और इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि तवज्जो जो है वो हमारी इतनी नहीं होती सब्जेक्ट के ऊपर। सही है। तो अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे और ये कैसे होते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे डेफिनेशन इसकी। इट इज़ यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था, ठीक है, कि क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट से। अब ये कैसे होता है, चले मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ। सही है भाई, आपके घर पे मिसाल के तौर पे आपका छोटा भाई, ठीक है, जैद, ठीक है, एक गिलास टूट जाता है, तो आप अपने घर पे किसी बड़े को बताते हैं, कहते हैं कि जैद ने गिलास तोड़ दिया, जैद ब्रोक ग्लास। सही है, ये एक्टिव है। क्यों? आपने सारा का सारा कसूर ही उस पर बता दिया, यानी कि आपने बता दिया कि एक्टिव कौन था, किसने तोड़ा, ठीक है, यानी कि उठाया, उठा के फेंका, तोड़ दिया। एक्टिव दिखा रहे हैं आप किसको, जैद को। ठीक है। जबकि पैसिव जब हम इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिलास वॉज ब्रोकन बाय जैद, जैद से गिलास टूट गया। अब देखें दोनों जुमलों में फ़र्क है बोलने में, है ना। हम कहते हैं जैद से गिलास टूट गया और जैद ने गिलास तोड़ा। आप खुद सोचें इसमें जैद का कसूर किस में आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, पैसिव में या एक्टिव में? जाहिर सी बात है पैसिव में ही ऐसा लग रहा है कि उससे ये काम हो, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट करार दे दिया हमने, गिलास टूट गया, ठीक है, असलम से गिलास टूट गया, वहाँ हमने क्या बोला, असलम ने गिलास तोड़ दिया। ठीक है भाई, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को तरजीह दी गई सब्जेक्ट पर। सही। चले तो अब हम इसको सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। तो इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं इसके। सही है। तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या हैं हमारे पास? ठीक है भाई, तो वो रूल्स आपके सामने आ गए। अच्छा, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी पे ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको नंबर्स में लिखें जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और वो देखिएगा कैसे इस पिक्चर के अंदर वो क्लियर भी होते जा रहे हैं साथ साथ। सही। तो देखते हैं। रूल नंबर 1 है हमारे पास, वो आप लिखें। ठीक है, नंबर 1 डालें और लिखें, ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। सही। नंबर 2, बी फॉर्म इज यूज्ड। अब ये बी फॉर्म क्या होती है मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा। बी फॉर्म इज यूज्ड। ठीक है। रूल नंबर 3 हमारे पास है यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी कि वी विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव में। नंबर 4 है बाय। ठीक है, यूज ऑफ बाय। एंड नंबर 5 डूअर। ठीक है, डूअर कम्स इन दी एंड। आप ऐसे लिखते हैं, डूअर कम्स इन दी एंड। 5वां रूल है आपका। अच्छा भाई, अब ये रूल्स को आप देखें, यहाँ पर जब हमने देखें एक्टिव से पैसिव बनाया तो ये रूल्स देखें कैसे फॉलो हो रहे हैं। मैंने पहला रूल क्या बताया था, ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। तो क्या हुआ, डॉग चेज द कैट। तो क्या हुआ यहाँ पर, डॉग की जगह क्या आ गया, कैट आ गया। जो क्या आपका ऑब्जेक्ट था वो आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आए। यूज ऑफ बी वर्ब, यहाँ पे बी वर्ब क्या है, वॉज है। ठीक है, पास्ट सिंपल है इसीलिए यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल कर। पास्ट सिंपल में हम लोग वॉज और वर इस्तेमाल करते हैं।
बी वर्ब, ठीक है। तो आ गया वो आपका वॉज। रूल नंबर 3, थर्ड फॉर्म। अब देखें आप को दोनों की स्पेलिंग सेम लग रही होगी क्योंकि चेस्ड में दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या था हमारे पास? बाय, यानी बाय का इस्तेमाल करना। और नंबर 5 क्या था? डूअर, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो एंड में चला जाता है, यानी कि वो बाय के बाद आता है। सही। तो ये पांचों रूल्स आपने देखा कैसे फॉलो हुए। अब आपने भी जब कभी पैसिव वॉइस बनाने हो तो आप इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं। सही। अच्छा, जो हमने आपको रूल्स बताएं उसी की मदद से ये फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको ये दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, देखें ये सबसे पहले क्या था? ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। इसके बाद यूज़ ऑफ बी वर्ब। अब ये देखें बी वर्ब में क्या है हमारे पास? एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन। ये टेंस के अकॉर्डिंग लगेंगे, ठीक है। हर टेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी कि जो उसका सूटेबल होगा। जैसे मैंने आपको कहा था वॉज वर पास्ट सिंपल में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा? इज, एम, आर आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा? विल भी आएगा। सही है। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। अच्छा, फिर क्या था हमारे पास? यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म बाय डूअर। सही है। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ गया है। इसी की मदद से हम सारे के सारे टेंसेस को कन्वर्ट कर लेंगे पैसिव वॉइस में। अच्छा, यहाँ याद रखें सारे के सारे का मतलब यहाँ पर 12 टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस हैं। और वो 8 टेंसेस कैसे पता चलेंगे कौन से? देखें 12 टेंसेस में से आप फ्यूचर कंटिन्यूस निकाल दें और परफेक्ट कंटिन्यूस की जो तीनों हैं उनको भी निकाल दें, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उनको भी हटा दें। तो आपके पास कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। 8 बचेंगे ना। तो पैसिव 8 टेंसेस के ही बनते हैं। सही। तो ये याद रखिएगा, इन 4 को हटा के बाकी के जो 8 बचते हैं ये फॉर्मूला उनके लिए है। चलें अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं। देखें, अगर हमने सबसे पहले प्रेजेंट का बनाना हो, ठीक है, तो प्रेजेंट की एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसी को देख के आप बाकी के भी कन्वर्ट इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है माशाल्लाह सब ज़हीन बच्चे हैं, सब गेट कर रहे होंगे और बना लेंगे। अब देखें सबसे पहले सेंटेंस क्या लिखा हुआ है मेरे पास? मदर कुक्स फूड। सही। हमने क्या करा? उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इसको कन्वर्ट करा। कैसे? फूड इज कुक्ड बाय मदर, यानी कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाए। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल में क्या इज, एम, आर आता है, तो फूड के साथ इज सूटेबल है इसलिए इज लगाया। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करा, कुक्ड हो गया, बाय और डूअर में मदर। सही है। अब देखें, अच्छा भाई, इसी तरीके से आप सारे के सारे टेंसेस को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। सही। अच्छा भाई, अब ये आपके पास और एग्जाम्पल्स हैं। देखिए आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस को जारी रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मज़ीद चीज़ दिखा दूँ पैसिव वॉइस के मुतालिक। मैंने आपको 5 रूल्स बताए। सही, 5 रूल्स बताए, ठीक है, यानी कि 5 चीज़ें आपने लगानी है फॉर्मूला के अंदर। लेकिन अब जो आप पैसिव वॉइस देखने जा रहे हैं इसके अंदर हमने छोटा सा चेंज आपको दिखाएंगे। प्रेजेंट सिंपल है हमारे पास, आई मेक अ केक, ठीक है, आई मेक अ केक, केक इज मेड। सही, केक इज मेड। अब यहां पे हमें 3 चीजें नजर आ रही हैं, ऑब्जेक्ट, बी वर्ब और थर्ड फॉर्म। सही, ये आपको नजर आ रही हैं। सही है। इसका मतलब ये है कि आपके जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं पैसिव के, वो 3 हैं, ऑब्जेक्ट, बी वर्ब और थर्ड फॉर्म। ये लगा दिया आपने तो पैसिव। अगर डूअर की ज़रूरत होगी तो बाय लगाएंगे। जैसे मैंने
कहा था जैद ने गिलास तोड़ दिया, तो हमने कन्वर्ट करा था गिलास वॉज ब्रोकन बाय जैद। सही है। अगर हम इतना भी कहते हैं गिलास वॉज ब्रोकन, गिलास टूट गया, अब तो जैद का जिक्र ही नहीं है, वो बिल्कुल ही बच जाएगा अब, है ना भाई। सही। तो आपने इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल की कुछ एग्जांपल्स दिखाई थी पीछे, तो अभी मुझे याद आया, नज़र पड़ी मेरी। तो देखें यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं। देखें हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना में पढ़ते हैं, जहाँ पे हर चीज़ हमें शरई तकाज़ों के से सिखाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेंटेंस नंबर 2 नज़र आया, जहाँ पे लिखा हुआ लता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि गाना सुनना ये गुनाह का काम है, हराम है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी मजम्मत करनी है। तो आप अपनी कॉपी में इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं लिखेंगे, आप इसको काट देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक सेंटेंस और नज़र आ रहा है, जिसे लिखा हुआ चिल्ड्रंस आर प्लकिंग फ्लावर्स इन द पार्क। देखिए ये भी एक अच्छी बात नहीं है, तो मेरी तवज्जो पड़ी, तो मैंने सोचा आपको ज़रूर ये बताऊं कि देखिए पार्क के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो फूल किसी पार्क में जाके तोड़ना, है ना भाई, क्योंकि हमें पता है फूल जब तक लगा हुआ है, ठीक है, तर है, तो वो अल्लाह पाक की तस्बीह बयान कर रहा है, अब हम उसको तोड़ दें, मुरझा जाएगा वो। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ये दोनों सेंटेंसेस को आपने चेंज कर देना है। ठीक है, कर देंगे, मुझे पता है। ठीक है। माशाल्लाह हमारे बच्चे इस चीज़ों की समझ रखते हैं, और हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों से अलग इसी वजह से, क्योंकि माशाल्लाह उनके ना दीन की समझ भी है। ठीक है। इन तरह की चीज़ों को और अखलाकियात को वो समझते हैं। सही। तो आपने इन चीज़ों को सही कर लेना है। सही है। इंग्लिश तो सीखना है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख दारुल मदीना से रहें, तो साथ साथ दीन और अखलाकियात भी हमें साथ तोहफे में मिलती है। या मेरे अहले सुन्नत का सदका है। अल्लाह पाक हमारे मुर्शिद का फैज़ान जारी रखे और उनका साया हम पर बनाए रखे। आमीन। सही। तो अब हम मूव करते हैं हमारे एंडिंग। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाहुल खैरा।